Hello, this is the lecture number 14 for the chapter straight lines for the class 11th, and in the last lecture we have done up to question number 21 of the miscellaneous exercise. Now in question number 22 it is given that a ray of light is passing to the point 1, 2 and it's reflect the x-axis at point A. Reflecting the x-axis at point A. Now you can draw the diagram like this. The equation of a line is passing to the point 1, 2 and it is reflecting the x-axis at A, and this is the point is 1, 2 and it is reflecting, the reflected ray is passing to the point 5, 3. This is passing to the point 5, 3. Let this point be Q and let this point be P, and this is Q, and we know that and what is given in this question, and reflecting ray is passing to the point 5, 3. Now you have to find the coordinate of the point A. A के coordinate पता करने हैं जो कि x axis पर है. Now you know the laws of reflection. We need the normal at the point of intersection of this point of intersection where the ray reflected, and we know that this angle of incidence is equal to angle of reflection, and because this is perpendicular, normal is perpendicular to the horizontal line, then this angle will be equal to 90 minus theta, and this angle is also equal to 90 minus theta. Now you have to find the coordinate of the point A, which is x0, because on x-axis y coordinate will be equal to 0, or let us call this coordinate be A0. Now as I explained to you that the angle of incidence will be equal to angle of reflection, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. That is why I have taken this angle is equal to theta. Now what is the slope of the line AQ? Now the slope of the line is AQ will be tan 90 minus theta, because here the angle of inclination is 90 minus theta, that is this line peak AQ making an angle of 90 minus theta with the x-axis. Now what is the slope of the line AP? AP का slope कितना होगा? This AP, and this angle of inclination of this AP is this angle, which is equal to 90 minus theta plus 2 theta, which is equal to 90 plus theta. This is the slope of angle of inclination of of the line AP. So therefore the slope of AP will be equal to tan 90 plus theta, which is equal to minus cot theta. In second quadrant the tan is negative. So from here we are seeing that the slope, the product of the slope of these two lines are equal to minus 1. Now if you see it, that the slope of this AQ plus the slope of AP is coming out to be 0. इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये 0 आ रहा है इसको, तो हम अब AQ का स्लोप निकाल सकते हैं पासिंग थ्रू द पॉइंट दीज टू AQ, विच इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, and the slope of AP will be passing to A0 and this to 1 to x2 minus x1 upon y2 minus y1 equal to 0. एक AP का स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से आपका tan cot थीटा आया, AP का AQ का स्लोप, और AP का स्लोप इसका आया माइनस का cot थीटा, और दोनों का सम 0 के इक्वल आ रहा है. हम AQ का स्लोप 2 पॉइंट से पास होता कर निकाल सकते हैं, और AP का ही स्लोप हम 2 पॉइंट से A0 और 1, 2 से निकाल सकते हैं. y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, and solving this you will get the value of A as 13 upon 5. So therefore the coordinate of the point of interaction of the ray with the x-axis is A0, that is 13 upon 5, 0. A0 13 5 upon 0. So this is the question number 22 of your miscellaneous exercise. Now in question number 23, read it carefully. You have to prove that the product of the length of the perpendicular from the two given points
length of the perpendicular from the two given points. The points are under root a square minus b squared 0, and another point is this is minus under root a square minus b square 0, minus under root a square minus b square 0. So these are the 2 points, and the distance of this point from the given lines, perpendicular distance is given. The line is x cos theta upon a plus y sin theta upon b is equal to 1, and let us call the distance be d1 and d2, and you have to prove that the product of these two distance is equal to b square. ये हमें प्रूव करना है. तो थोड़ा सा मैंने रफ फिगर बना लिया है. तो पहले मैं इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूंगा, और फिर आई विल मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट दिस बी स्क्वायर. ओके, सो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस होता है a इंटू एक्स वन प्लस बी इंटू वाई वन माइनस सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो पहले मैंने डिस्टेंस निकाल लिया इस पॉइंट से इस लाइन का. तो a यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन ए है, और x1 यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इट विल बी कॉस थीटा अपॉन ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0 माइनस 1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर. ए इज कॉस थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर. ये आपका d1 आ गया. सिमिलरली d2 भी यही आएगा, केवल माइनस का अंतर है यहाँ से, इसमें और इसमें केवल माइनस का डिफरेंस है. तो माइनस कॉस थीटा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का मॉड अपॉन, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बराबर ही आ रहा है, कॉस थीटा अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा अपॉन बी का होल स्क्वायर. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको किसके इक्वल लाना है? इफ यू हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो आपको ये मल्टीप्लाई करना है, आपको यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू. तो d1 इंटू d2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस थीटा अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें आप माइनस कॉमन लेकर के इसका मॉड खत्म हो जाएगा, और ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी, जब ये माइनस कॉमन लेंगे मॉड इसको क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा. ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज बी स्क्वायर. जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के, किसके नीचे यही आ रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर. सो सिंप्लीफाई करिए, टेक योर ओन टाइम एंड स्पेस. इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और उसमें बी स्क्वायर कॉमन आएगा. तो ये आपका कंसेप्ट था, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स फ्रॉम द सेम गिवन लाइन. यस, इन क्वेश्चन नंबर 24, इसको पढ़िए आप ध्यान से. क्या है इसमें डिस्टेंस? अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ द 2 स्ट्रेट लाइन्स क्रॉसिंग 2 स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाय दिस. एक पर्सन इन दोनों लाइन्स के जंक्शन पर मतलब क्रॉसिंग पकड़ा है. 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, लेट अस कॉल इट L1. और दूसरी लाइन है हमारे पास 3x माइनस प्लस 4y एंड प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0. यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, एंड ही हैज़ टू रीच द इक्वेशन दिस. एक अनदर लाइन है 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 इन द लीस्ट टाइम. मतलब ये जो डिस्टेंस है p, ये एक परफेक्ट, जब लीस्ट टाइम में उसको पहुंचना है
तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलरली चलना पड़ेगा। तो आप किस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेट अस कॉल दिस लाइन बी L1, दिस लाइन बी L2 और ये लाइन हमने क्या मान ली L3। तो आप क्या करिए, इन लाइन L1 और L2 को सॉल्व करके इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए जहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, और फिर उसको जब लीस्ट टाइम में यहाँ पर पहुँचना है तो उसकी इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन द पाथ ही शुड फॉलो। तो पाथ मीन्स इक्वेशन निकालनी है। तो ये पॉइंट पता है और इस लाइन के स्लोप से आपको इस जो लाइन निकालनी है, पाथ निकालना, उसका स्लोप पता चल जाएगा और उसकी इक्वेशन आप निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे L1 एंड L2। L1 और L2 को आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें x की वैल्यू आ जाएगी 31/17 और y की वैल्यू आ जाएगी -2/17। यू टेक योर ओन टाइम। ये जो आपके किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, आपके p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ p। ये p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके x और y। नाउ जब इसको इसके लीस्ट टाइम में पहुंचना है तो ही शुड मूव परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर उसको मूव करना है। सो द स्लोप ऑफ द लाइन L3, स्लोप ऑफ द लाइन L3 कितना हो जाएगा, -a/b, दैट इज 6/7। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड पाथ विल बी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप माइनस इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा -7/6 एंड द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पाथ, ये स्लोप हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो कितना हो जाएगा, y - y1, दिस इज y1 इज इक्वल टू स्लोप x - x1। x1 कितना है आपका 31/17। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पाथ। When you solve it, cross multiply it, you'll get the equation as 119x, 102y is equal to 205. So this is the required equation of the path which he has to travel in the least time. So to travel the path in the least time, he must travel perpendicularly to the required line which is L3. तो जो पाथ है हमारा ये वाला जो P से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका स्लोप लाइन L3 के स्लोप्स का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। जो लाइन L3 का जो स्लोप है 6/7 है, तो रिक्वायर्ड पाथ का जो इक्वेशन का स्लोप होगा इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, दैट इज -7/6, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। ये पॉइंट हमने निकाल लिया, कैसे, इन दोनों लाइन को सॉल्व करके ये पॉइंट आ गया। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये पॉइंट हमें पता है, इस लाइन का स्लोप हमें पता है, तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। m ये रहा और x1 y1 ये रहा। Okay, this is the completion of this miscellaneous exercise as well as the chapter straight lines. Okay, thank you.